welcoming Samir Rahat Buvin along with Arjuna to talk about Mehfil to microphone. Put your hands and show some love and support, guys. A little info over here. We have Samir Rahat is a Mumbai-based writer, lyricist, performer, and film music composer, producer. He is the founder of Baksa Studios, a creative hub for writing and recording music. As an artist, Samir is known for his distinctive Urdu blues sound blending poetry with contemporary musical expression. His debut album, Amar 2020, topped charts and earned a praise for its lyrical depth. His work has been featured across major platforms including Netflix, Amazon Prime, Sony Live, and Disney Plus. He has also brought his voice to international stages with tours across Europe, including Germany and the UK. Next up, we have Bhuvin, is an indie folk artist who makes the stage his playground, a UX designer at Microsoft by day. He flips the switch, live looping vocals, acoustic guitar, and percussion to build tracks in real time. Rooted in Sufi and Hindustani folk with Rajasthan and Punjab flavors, his sound meets modern Bollywood energy. His debut album, Noor, was mic-dropping. Next up, we have Arjuna, is a Hyderabad-based cultural curator and music supervisor, shaping how the city listens. With roots in journalism, his work is driven by storytelling, research, and culture context. He's the founder of Tangi Sessions, Hyderabad's first homegrown platform for intimate live music, taking concerts to heritage spaces, rooftops, stepwells, and unexpected corners of the city. As a city leader for So Far Sounds, Hyderabad, and Netflix certified music supervisors, he works at the crossroads of music, cinema, and narrative with a strong focus on South Indian and independent music. On that stage, can we hear it for Samir, Bhuvin, and Arjuna, everybody? Hello. Hi guys. Are you having a nice time? Yeah, it's also the last day of the Lit Fest, so I'm happy to see all you guys here. And what was the previous show that, like the previous? What? It was an open mic, so people came and performed? Oh, yeah, thank you so much. But who performed just now? Everybody? All of you all have performed? Oh, oh, crazy. We should have seen that. थोड़ा जल्दी आना था अपन. It's too early. But it's so nice to see you guys, and it's interesting to have a mixed age group here in this kind of a conversation because uh, we're talking about a tradition that how we are reimagining it in today's time, and how these two musicians, have you heard their music? Yeah, and even if you haven't, or if you have, I can assure you I've known them for probably 8 years now, and I've been doing this for the past 10 years. So I know how the journey has changed ever since I have met them, and been a part of their shows, been a part of our shows, and it has really made a difference. I can assure you that. And today, I think let's keep it a little casual. We don't need to like just open it up for the question answer just in the end. I think we'll keep it, even in the middle if somebody wants to like ask something. Um, the only thing is none of us are singing we're not singing because the open mic is done. But we'll keep this conversation flowing as much. Yeah. So, have you guys attended a mehfil before? Any of you all? No. This is the first one. Yeah? No? Oh, you have, ma'am. Okay, great. Um, so, anyways, so, uh, yeah. So, this man on my left, Samir Rahat, comes from a lineage of poets, and his like bread, butter, jam, and every day in everything, ever since his childhood, has always been surrounded by this kind of an atmosphere. And I was always curious to understand, like, is it a responsibility? Does it like put pressure? Because he has carved his own sound, like, with a quite
defiance, if I may put it that way. You know, so and his first album, debut album called Ahmad, critically acclaimed, like the use of ghazals, rock, contemporary, cinematic soundscape composition, I must say, was one of its kind when it launched. And it's like the slow poison that slowly gets to you and it never ever leaves you. And so I'll open up the discussion first with you of like how has it been like at home and then slowly you got on stage being a performer. So how did you take that? Like, do you remember your first time you got on stage in this kind of a setting? Adab, everyone. Salam. Hello. Hi. Yeah, I mean, first of all, Arjuna, I'm happy to be here. ऐसा लग रहा है दोस्तों के साथ बैठा हूँ सब घर पे ही बैठे हुए हैं चिल कर रहे हैं टाइप्स तो which is it महफिल है बिल्कुल ये and I am thankful to HLF for having me, so that's nice. And sitting with both of you, it's very hard for me to be serious because we've known each other for so long that it feels like, you know, we've done this a couple of times in different balconies. Kabhi meri balcony pe, kabhi iski, so I'll have to behave. So you have to keep me in check and keep reminding me कि भाई record हो रहा है सब, तो you know. So are you guys okay with Hindi, English, or should I just you know, do conversation in English? I can just keep it in English. What do you good? हैदराबाद में सब चलता, मोड डाल दो. So yeah, I remember not being on stage, Arjuna, but because both my parents are poets, what used to happen is कि जब वो मेहमान आते थे तो लोगों को जैसे बचपन में डांस कराते हैं या गाना गवाते हैं कि होता है ना, आप बच्चों को बोल देते हैं योर गेस्ट आर देयर तो बेटा गाना गा के सुनाओ, डांस करके सुनाओ, तो मुझे बोलते थे शायरी सुनाओ. तो जब मैं छोटा था 5 साल का या when I was 7, 8, the guests would come and they would ask me to recite some poetry by my father or anything that I knew. And so वो परफॉर्मेंस ज़रूर वो वाली महफिल में करता था. आसपास 10 लोग हैं और शायरी सुना रहे हो आप, और आपको शायरी समझ नहीं आ रही क्योंकि 8 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आ रहा है, तो वो रटा हुआ है सब मामला. वो गहरी एकदम डीप उर्दू पोइट्री 8 साल का बच्चा सुना रहा है. तो ये मेरी मेमोरीज हैं ऑफ बीइंग ऑन स्टेज. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिडंट वांट टू बी ऑन स्टेज क्योंकि आई सॉ बोथ माई यू नो पेरेंट्स जस्ट बीइंग ऑन स्टेज ऑल द टाइम. तो मुझे कुछ अलग करना था, तो मुझे क्रिकेट खेलना था एज एनी अदर बॉय यू नो and a girl in this country. तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था स्टेज पे जाने का. Yeah. ऐसे मत बोलो भाई. But but I'm happy you did. Yeah, I'm glad. Yeah. अभी तो मन नहीं था तो ये हाल है. मन नहीं था तो ये हाल है. कहीं मन होता तो. No, true. And so Bhuvan is one of the few people or the only musician that I've known who's done so much of live looping on stage. And it's a very difficult art form. A lot of people also don't understand what exactly goes into it because it's almost you're creating a new soundscape at the same time and also creating the mahol of a mehfil with your own IP called as Shame Mehfil. Taking it all across the world actually, and I really mean it because last year I kind of met him at an airport, and he was telling me that this year he had taken 700 flights. In last 4 years. एक साल में 700 फ्लाइट तो पायलट भी नहीं ले सकता अर्जुन. No, in last 4 years. But I remember the number for 700. So मैं वहाँ ही अटक गया. That's crazy. What kind of card do you have flying? Like, I think I have all the cards that are possible for any flight. हाँ है ना. Booking next. मेरे points use कर लो आप. So, like you know, first it used to be in a room. You know, like among friends in a circle where, like what's happening right now, you know, where the lines are blurred between the artist and the audience.
and there used to be interruptions, which never which doesn't happen right now in a performance. No, they still do. They still do. No, in a good way. So, which also actually changes the narrative of the evening when you know, either you have your wawa, you have the interruptions, you have, like, you know, has that ever happened on stage where something that came from an audience kind of changed your perspective or narrative of your evening of performance? Or it's always been So, okay, first of all, I'm not even sure that how am I invited at a literature fest. no, this is too Because- modest now. No. Okay, I'll give you a reason. The like, perks of being friends with Arjuna. no, me. Oh, sorry. No, because I'll set the bar. Okay, Huh. like how he was saying that instead of singing or dancing, his parents asked him to recite poetry, right? मेरे वालों ने बोला था घड़ी में time देख के बताओ. That is where I started. Okay, and plus I think in my entire lifetime I've read 4 books, and 5th one I'm trying to finish from past 1.5 year. So, thanks for having me here. I'll just put the expectations in the right place because I don't think I'm well read to even talk about things. But theek hai, whatever I'm doing, I can share. Yeah. And whatever I observe. So I think for the evening that you're saying, this is a format that I follow for my shows. I just have the first chord decided in my head that, okay, either I'm going to go on stage and hold a C major or a E minor, and then we'll see. No matter how small or big the show is, that's my mindset, because you never know what the room responds to. So sometimes they do interrupt, sometimes they just do not talk at all, they don't respond at all. So I have a timer set in my head, and that's how I've trained my muscle memory as well, that in 30 seconds you have to change the response. If it is interruption, 30 seconds should stop. If it is not coming out in a way that you expected, change your course in 30 seconds. So every next 30 seconds, I keep switching my mindset that, okay, you have to read the room and keep moving. Because when you're doing a solo set where you have live looping, I would say this is also a privilege that you have. You don't have to plan. Yeah. No one knows what my next song is. Yeah. No one knows where I'm going to stop. So I can just put a kick and then, okay, this was a halt. So, and then you pick it up from there to whichever direction you want to take. So that has worked in my favor. But that means for those 3 hours, I can't relax when I'm on stage. Right. So yeah, I think the room decides how the show is going to be. Got it. Yeah. And what did you like? It's been maybe 6 years since you started Shame Mehfil. Yeah, the first one that I did, Shame Mehfil, was like around 6-7 years ago. 6-7 years ago, and now you have taken it like to all across the world, right? So right now I'm touring with Noor Dasta, which is a part of Bhuvin Experience. So I've created these multiple IPs just to give myself a structure for a show. Shame Mehfil is where I would invite someone like Sameer, who's sitting next to me, who starts a conversation, and I try to complement it with the guitar or music or the songs or poetry that I can come up with as an answer. Mida that you do. Mida. ke Yeah, saath aap- Nayab and Nayab, Soumya. So these people that I've performed with. So that is Shame Mehfil. But right now what I'm doing is Noor Dasta, which is like my primary focus for now. So that is where I'm just trying to build a story out of my experiences. And it's not exactly me narrating a story, but more of me revisiting those stories on stage. That, oh, when I was in school, this is the song that I used to listen to. This is how I felt about it. And this is why I reached this particular song, because I was going through something and I heard this song and it made sense to me in my class 4th. Right? So these kind of things are very naturally coming to you while you're reliving those songs. So I just don't stop myself when I'm on stage while sharing those experiences. That, by the way, this happened. And every now and then the story changes, because sometimes you recall a different incident and you end up narrating it. So again, given that looping setup, you don't have to follow a structure because you don't have a band to coordinate with. So I can pause wherever and tell a story and then go ahead. Yeah, it's just that my legs hurt by the end of the show. And Sameer, it's been 8 years since you are coming to Hyderabad. Yeah, it is. And you've been
part of so many mehfils, on stage, also backstage, and also in the audience, right? So what have you seen as difference in like all these different places that you've been to? And what do you think about Hyderabad and like the other places that you've been as any of like in any of these roles? देखो अर्जुना, हैदराबाद शहर जो है वो महफिल है, वो पूरा शहर ही महफिल है. तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इवन व्हेन आई एम हियर नॉट परफॉर्मिंग, महफिल ही चल रही है. मैं तो पहले तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये समझना होगा कि महफिल होती क्या है. महफिल क्या है, ये वर्ड क्या है महफिल, इसका क्या मायने है. हम महफिल बोलते हैं तो वी कैन गो डीपर इन दिस विद भुवन ऑल्सो, एंड आई लव टू नो हिज पर्सपेक्टिव ऑन इट. बट व्हाट इज़ अ महफिल? आजकल बहुत लूजली ये टर्म इधर उधर थ्रो हो रहा है ना. हर जगह महफिल हो रही है, क्लब में भी महफिल है, एक घर पे तो महफिल है ही. महफिल कुछ नहीं है. महफिल इज़ अ गैदरिंग, राइट? दिस इज़ वेरी व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ अ महफिल. यू नो, वी गेट टुगेदर. अब द कॉन्टेक्स्ट हैज़ रियली स्विच्ड बिकॉज महफिल इज़ एन उर्दू वर्ड, और महफिल को सीधे सूफ़ी से जोड़ दिया गया है. और अगर महफिल हो रही है मतलब कुछ सूफ़ी होगा वहाँ, कुछ डिवाइन होने वाला है, डिविनिटी होगी, बहुत स्पिरिचुअल बात होगी, या कुछ कव्वाली होगी या गज़ल होगी. हम सबसे पहले महफिल सुनते हैं तो शायद यही सोचते हैं कि महफिल मतलब कुछ पिया हाजी अली हो सकता है, या कुछ, या फिर जो आजकल चल रहा है सूफ़ी, उस तरीके का म्यूज़िक हो सकता है. तो महफिल एक्चुअली कुछ नहीं है. महफिल दो लोगों की भी हो सकती है, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन वो और तेरा दिन कैसा गुजरा नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ी उससे आगे की बात कर रहे हैं, है ना. वो महफिल हो सकती है व्हेन यू डिस्कस पोइट्री, म्यूज़िक, एनी काइंड ऑफ लिटरेचर. एंड और एक महफिल ये भी हो सकती है जो मैंने देखी है, जो अर्जुना मुझसे पूछ रहे थे, कि मुशायरा जो होता है, विच इज़ पोइट्री सिंपोजियम. आप पोइट्री का कॉन्सर्ट समझ लीजिए, सारे पोइट्स इकट्ठे होते हैं, जो आप ओपन माइक कर रहे थे, बट ऑल द पोइट्स आर ऑन स्टेज लाइक हाउ वी आर, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉल्ड वन बाय वन. तो मुशायरा आप लोगों को शायद पता हो, हैदराबाद के लोग हैं तो मुशायरा तो बहुत लोगों को पता होता है. तो मैंने वो महफिल भी देखी है, दो लोगों को वाली, कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं. हमने बहुत घर पे महफिलें की हैं, ये भी एक महफिल चल रही है. और एक वो महफिल देखी है जब मैं स्टेज पे हूँ, और जस्ट इमेजिन एक पोइट स्टेज पे है और 10,000 लोग या 20,000 लोग सिर्फ पोइट्री सुन रहे हैं. मतलब ऐसा भी नहीं है कि लौला पलूजा चल रहा है कि पूरा सेटअप है, लिंकिन पार्क आया हुआ है और 20,000 लोग आए हुए हैं. एक बंदा स्टेज पे है, माइक्रोफोन पे है, और 20,000 लोग. और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, हैदराबाद में एक्चुअली रिसेंटली. तो महफिल वो भी हो सकती है. तो आप समझेंगे महफिल जो टर्म है वो बड़ा वाइड टर्म है, यू नो, कि वो बिल्कुल न्यूरोलॉजी के लेवल पे भी जा सकता है, न्यूरो साइंस के लेवल पे भी जा सकता है, और महफिल जो है वो एस्ट्रोफिज़िक्स के लेवल पे भी जा सकती है, क्योंकि उस पर बाद में बात कर सकते हैं. बट महफिल मेरे लिए एक बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस रहा है, कि वो 3 लोगों की महफिल हो या 4 लोगों की महफिल हो, जो बहुत ही एक कमरे में है, और एक ऐसी महफिल जहाँ 20,000 लोग बैठ के सिर्फ एक पोइट को सुन रहे हैं. तो दैट्स द पावर ऑफ कमिंग टुगेदर. एंड अभी आई थिंक व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज़ टू जस्ट कम टुगेदर. इट डजंट मैटर कितने लोग हैं, और यू नो हमने मिलना बंद कर दिया है, हम अपने फ़ोन के साथ महफिल कर रहे हैं. तो वो महफिल इज़ टू जस्ट गेट आउट एंड यू नो मीट योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, है ना. और लाइक आई सेड, बट डिस्कस समथिंग वर्थ वाइल, और पोइट्री और वट एवर इट इज़. बट तफरी के अलावा तफरी हो जाती है फिर वो जो शाम को मिलना होता है. बट या, सो दैट्स व्हाट आई थिंक. लाइक महफिल इज़, it can be a smallest of the people, you know, together, and the biggest of the crowd just for one poet, you know. So the power of mahfil, madness. So you think like in this day and age, like having tech involved, is it like a superpower, or are we losing what was before? या ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्योंकि महफिल की अगर मैं बात करूं तो भुवन से I want both of you all to answer. ये इस आदमी ने जो रात को इंस्टाग्राम लाइव पे महफिलें की हैं, और जो अब बहुत कम कर दिया है, बट मेरा लॉकडाउन इसलिए निकल गया था कि हम ये वही, बिकॉज वी वर इन अ लॉकडाउन, वी कुडंट ऑब्वियसली मीट ईच अदर. तो ये टेक की अगर हम बात करें तो मैं तो और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हूँ उस मामले में. मुझे लगता है कि हमें बाहर निकलना है, बट यू हैव सच अ वैरायटी राइट नाउ,
क्योंकि ये आदमी फ़ोन पे इतनी खतरनाक महफिल कर देता है और उसमें आप द रीच इज़ अनलिमिटेड, यू नो, पीपल आर देयर एंड दे आर स्टिल कनेक्टिंग. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थैंकफुली अब लॉकडाउन नहीं है और ये कोविड वगैरह के मामले नहीं है, कोई वबा नहीं चल रही है, तो जितना ज़्यादा बाहर निकल के इन पर्सन महफिल हो पाए वो ज़रूरी है. तो या टेक इज़ देयर, उसको आप यूज़ करें, लोगों तक बात पहुंचाने के, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करें, पर मिलें असली में. What do you have to say? Because I don't know how many times I have been a part of his life. Too many times. Like to a point where now I just connected to the speaker and it's just, it's or I've seen so many people having that live in their cars while they're going back home and stuff like that. So what do you have to say about this? I think so. ये माइक है ना. If I remove this, I can reach maybe you, but पीछे तक आवाज़ नहीं जाएगी. अभी अगर मैं माइक में बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज़ आ रही है. तो this is what tech can do. But मैं बोलूँगा क्या वो तो समझ है ना. तो अगर मैं बकवास करने लगूँगा तो माइक छीन लेना बेटर है. तो अगर बात पते की नहीं है तो महफिल में से टेक निकाल देना चाहिए. और अगर कोई तमीज़ की बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, तो उसको टेक जितना सपोर्ट करे उतना बेहतर है, क्योंकि उतने ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी. तो मैं मतलब अब इसी को मैंने थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि क्या 2 भुवन बात कर सकते हैं. सो आई फाउंड एन इक्विपमेंट दैट कैन रेप्लिकेट माई वॉइस इनटू 2. देन मैंने सोचा कि अगर भुवन गाता रहे और उसके ऊपर एक और भुवन गाए, क्योंकि मेरे पास कोरस सिंगर नहीं है. सो देन आई फाउंड अ लूप स्टेशन वेयर आई कैन पुट माई वॉइस ऑन लूप एंड देन आई कैन सिंग ऑन टॉप ऑफ इट. तो मैं सिर्फ उस आवाज़ को कितना एम्पलीफाई कर सकता हूँ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक, वो एक्सप्लोर करता रहा हूँ पिछले 6-7 साल. एंड दैट एनेबल्ड मी टू डू व्हाट आई डू राइट नाउ. बट अगर भुवन बात ख़राब करने लग जाएगा तो उससे छीन लेना ये सब, क्योंकि बात सही होनी ज़रूरी है. महफिल और उसको पहुँचाने का तरीका, जो टेक इज़ जस्ट अ मीडियम, एंड आई एम ग्लैड दैट वी हैव रीच्ड अ प्लेस वेयर वी कैन एक्चुअली एम्पलीफाई इट सो मच. बट अगेन वी स्टिल हैव टू गो बैक टू कि महफिल क्यों है. बात वही है ना, तफरी नहीं करनी है. अगर कोई बात कर रहे हैं तमीज़ की अच्छी, तो बैठो उससे बात करो, कुछ सुनो. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आजकल जहाँ पे महफिल के नाम पे बहुत कुछ कर देते हैं लोग. तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ना हो बस. फिर उसके बाद टेक जो भी आपको एनेबल कर रहा है चीज़ों के लिए, आई थिंक दैट्स ओनली अ ब्लेसिंग, नथिंग लेस. And it's getting cold, I guess. If you just take the last 10 years, because it's been like, kitna, like, I think 20 saal since you guys started playing, or yeah, मुझे हो गया 20 साल. 20 saal, and karib I think from your college, like if you around that time. But if you just take the last 10 years, wait, like, and evaluate it from now. What has been like the biggest learning in the direction that you want to take yourself towards? Because since the time we have met, a lot of things have changed and a lot of things have remained the same. But like taking that and now and being in this position and like, you know, like understanding your sound differently, what are you excited about? Which way are you going in the next, say, 2-3 years, or just what are you excited about musically going ahead? What I have realized, Arjuna, in the last 20 years is कि ये महफिल और माइक्रोफोन का जो मामला है, ये जो रिश्ता है, ये लाइफ लॉन्ग है. तो ये ऐसा नहीं है कि मैं एक एल्बम निकाल दूंगा और उसके बाद मुझे लगेगा कि अरे वाह, ये तो कर दिया मैंने आज जीवन में. या इफ़ आई एंड अप डूइंग द बिगेस्ट फिल्म विद शाहरुख खान और यू नो हूएवर इन इट, और वो बिल्कुल वायरल हो जाते हैं गाने और यू नो इट बिकम्स द बिगेस्ट हिट, तो शायद मेरा काम हो गया है. मुझे नहीं लगता. मुझे ये एक ब्लेसिंग की तरह लगता है that I'm able to hold the microphone and like he said कि to be able to sing in it and make sense of it and you know connect with people somehow. तो मुझे सबसे खूबसूरत बात इसमें ये लगती है कि मुझे रिटायर नहीं होना है जब तक मैं मर नहीं जाता. तो मैं रिटायर ही नहीं हो रहा हूँ. So that's the most beautiful part of being
एन आर्टिस्ट, यू नो. पॉलिटिशियंस भी नहीं होते रिटायर जब तक वो मर नहीं जाते, पर थोड़ा अलग है यहाँ पे. तो एंड both are art, no? बोथ इज अलग, अपने अपने लेवल पे आर्ट है. तो मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे एक्साइटमेंट से ज़्यादा एक मेच्योरिटी इज सिंकिंग इन धीरे धीरे. The more and more, and I think I would love to know what Bhuvan thinks about this, but my revelation in the last couple of years has been कि मैं जितना ज़्यादा आर्ट कर रहा हूँ, because especially when you start as an artist, you think you have certain goals, और सब आपको आसपास वाले ये बोलते रहते हैं, especially आपके पेरेंट्स के, कुछ बड़ा कब होगा, मशहूर कब होगे, पैसा कब आएगा. बट ऐसा होता नहीं है. But जैसे जैसे आई एम डूइंग माई म्यूजिक एंड इम्प्रूविंग एज एन आर्टिस्ट और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, I am becoming more relaxed. I am saying that I am just blessed to be able to pursue this, and slowing down for me. Everything is slowing down for me now. I'm excited हूँ चीज़ों के लिए. The album comes out, a gig is happening today, so I'm excited about it. But वो excitement वहीं तक है, और उसके बाद एक स्थिरता है, एक स्थिरता है कि अब तो मतलब कर रहे हैं हम. अब उसमें अब इतना आसान हो गया है इंस्टाग्राम पे कि आपने कुछ डाला और वो चीज़ अगर वायरल हो गई, इट्स बिकम द वेट ऑफ सक्सेस नाउ, यू नो. इट्स दैट्स द वेइंग स्केल नाउ. आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज़ हैं आपके, आपका सब्सक्राइबर्स वाला मॉडल है क्या, ब्लू टिक है क्या. ब्लू टिक का कोई मतलब ही नहीं बचा है यार. मतलब आप किराए पे ले सकते हैं. मुझे तो तब मिला था जब लेजिट मिलता था. अब लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता उसका, लोगों को लगा किराए पे. तो यू नो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आई एम ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट, आई एम रियलाइजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन इट डिडंट एग्जिस्ट, इवन देन आई वाज एन आर्टिस्ट. तो पिछले 10 साल की अगर आप मुझसे बात करें तो मेरा यही जर्नी रही है. पहले 10 साल जो थे वो थे कि अरे मचा दूंगा मैं, आई विल किल इट, आई विल बी लाइक आतिफ असलम और ना जाने कौन कौन. अब मुझे लग रहा है कि आतिफ भी मिलेगा तो दुआ सलाम ही करूँगा मैं. तो बस ये है मामला. आई थिंक मेरे लिए पिछले 10 साल जो इफ आई कैन बी रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक 10 साल पहले आई वॉज वर्किंग इन अदर सिटी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी फॉर माई बर्थडे. आई वॉज इन बॉम्बे, सो a friend of, and I was working there in a corporate job, and I still do, matlab nothing wrong with the corporate job, but my friend called me who used to be in my college, and he's like, happy birthday rockstar, because that's how he recalls me from my college time. And I kind of laughed at it because I had no idea where my guitar is 10 years ago. Like from past 2 years I did not even recollect where my guitar is stored. I had forgotten about music after my college. I was working in a job. तो वो 2 साल म्यूज़िक था ही नहीं मेरी लाइफ में. सर लाइक क्या बातें कर रहा है तू, मतलब मेरे बर्थडे पे विश करके मेरा मूड क्यों ख़राब कर रहा है. सो देन आफ्टर दैट डे आई काइंड ऑफ क्राइड एंड आई वाज लाइक वेयर हैव आई रीच्ड, वाई देयर इज़ नो म्यूज़िक इन माई लाइफ. सो व्हेन आई kind of calibrated what I'm doing with my life and what I want to do, I sat with a friend and he was like, what is your problem, why are you so sad, what do you want? I said, I want some time to do music. Like मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं अपना गिटार अनपैक करके बजा सकूं, क्योंकि मेरे को वो एक टास्क लगता है. टू ओपन अ गिटार, टू ट्यून इट एंड टू सिट विद इट, इट टेक्स half an hour to get into that zone. And that half an hour I couldn't afford at that time because I was trying to do something with my life from my corporate career point of view. I was trying to earn my lifestyle or whatever. So वहाँ से मेरे को सिर्फ ये था कि मेरे को आधा घंटा मिल जाए सुकून से बैठ के गिटार बजाने के लिए तो काफ़ी है, और अगर 4 लोग सुन लेंगे तो और भी अच्छी बात है. एंड दीज आर लेजिट माई वर्ड्स. ओके, आई आस्क्ड फॉर दिस 10 years ago in front of my friend and I can't even like deny कि मैंने तो बहुत बड़ा सोचा था. दिस was what I was asking for. तो अब जो भी है ये बोनस है, अब जो भी हो रहा है वो बोनस है. तो 10 साल में आई थिंक मिल गया जो मिलना था मेरे को. आई हैव इनफ टाइम टू प्ले दैट गिटार. इफ़ आई कांट फाइंड माई गिटार आई कैन हैव अनदर गिटार. सो Like I have 20, you have 20 guitars now, so वो सबके अपने अपने शौक होते हैं ना. 700 flight. कोई जूते 20 खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, मैं गिटार खरीदता हूँ. बस अपने अपने शौक है सबके. तो मेरा है अभी, इसको बुरी आदत मान सकते हैं क्योंकि स्टेज पे एक ही बजाना होता है.
एंड जितने भी हैं वो सारे अच्छे हैं, कोई भी बुरा साउंड नहीं करता है, बट चुल है कि नहीं ये वाला शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा. So that is where I invested my money, because because my corporate job was paying me something, and I did not have any other way to spend that money. I don't have other vices where I can spend money, so I think I just chose this. So पिछले 10 साल में I think the only thing that now has occurred to me is, okay, you've done whatever you wanted, now do what is needed. So I have switched my mindset to you deliver what is needed from you as an artist, because तब तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आर्टिस्ट हूँ. तब तो मैं एक म्यूजिशियन था जिसको म्यूज़िक बजाने का टाइम नहीं मिलता था. तो मैं ये भी नहीं जानता था कि क्या मैं म्यूजिशियन हूँ. सो वहाँ से अब मैं इस रियलाइजेशन में आया हूँ कि शायद मैं आर्टिस्ट हूँ. एंड इफ़ आई एम सपोज टू बी एन आर्टिस्ट, आई एम सपोज टू बी अ वेसल हु कंटेन्स आर्ट विच अराइव्स इन, राइट, एंड देन यू डिलीवर. सो अभी मैं थोड़ा सरेंडर मोड में आ गया हूँ कि if you are blessed with this position in life where you are a vessel to contain art and deliver it, then better be a clean vessel. So that is where I've reached now in last 10 years. इस आदमी ने 4 किताबें पढ़ी हैं, ऐसी बातें करता है. अच्छा है, कम किताबें पढ़ रहा है, पता नहीं क्या कर. हाँ, I think okay, and this is something that because he spoke about the social media and how we kind of consider that as a validation for success. I think because यहाँ पे open mic हुआ था, so there must be some young artists here. I want to tell you one thing, and this is something that in last 10 years we both have learned from the experience. अगर आप art बना रहे हो या music बना रहे हो कोई भी form में, वो एक form of art है, and just to remind you, it is going to stay even when you die. नुसरत साहब जा चुके हैं, पर उनके गाने आज भी मैं बैठ के सुनता हूँ, ठीक है. सो ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जो आप क्रिएट करोगे और वो आपके मरने के बाद भी ज़िंदा रखेगी आपका नाम. सो बेटर बी कॉन्शियस अबाउट वॉट यूर लिविंग बिहाइंड, बिकॉज ऑन द अदर साइड यू कैन क्रिएट अ 10-second हुक and it can go viral on Instagram. I won't even lie about it. I was trying to collaborate with an artist a couple of months ago. I spent a night in their studio. We spent almost like 4-5 hours throughout the night. And all I could hear in that room, and not just the artist, the other people in the room, in the studio, like the sound mixers or the producers, everyone is like, अरे ये लाइन पे रील बनेगी, ये लाइन पे रील बनेगी. तो ये आजकल का कॉन्सेप्ट बन चुका है. बट आप ये देखो कि शायद आज से 20 साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था, और शायद 5 साल बाद इंस्टाग्राम नहीं रहेगा. तो ये आर्ट जो पहले एग्जिस्ट करती थी 20 साल पहले, वो आज भी रेलेवेंट है. उसको आज भी लोग रीमेक कर रहे हैं. और जो अब अच्छा आर्ट बनेगा वो बाद में भी रेलेवेंट रहेगा, चाहे इंस्टाग्राम ना रहे. तो आपको डिसाइड करना है कि आप म्यूज़िक अपने लिए बना रहे हो, आर्ट फॉर्म के लिए बना रहे हो, या वो 10 सेकंड के हुक के लिए बना रहे हो. बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये ईजी है. जब आप 10 सेकंड का हुक बनाने जा रहे हो ना, आपका कंपटीशन सिर्फ गानों से नहीं है. फिर वहाँ पे वो देखो ना गाइस, देखो ना, दिस इज़ ऑल्सो योर कॉम्पिटिशन. A person while posting a story can choose your song or can choose this. देखो ना guys. So you choose your battle. आपको किसके साथ लड़ना है? आपको हर वो ऊपर नीचे आंडू पांडू ट्रेंड के साथ लड़ना है, या आपको सिर्फ अच्छा म्यूज़िक बनाना है जो आपके मरने के बाद सस्टेन करे. So you choose your battle, please. मुझे हाँ, I completely agree with him, and I'm so glad we could speak about this and the conversation is finally flowing. And बट मैं कहूँगा कि लड़ो मत. मैं बस एक चीज़ पे डिसएग्री करूँगा भुवन के साथ. मेरा थोड़ा अलग ख्याल है. मुझे लगता है हम जब आर्ट परस्यू करें, कोई लड़ाई नहीं है इसमें, कोई इंटरनल लड़ाई भी नहीं है. लड़ना नहीं है आपको. गुलजार साहब का एक कोट है. गुलजार साहब कहते हैं कि जो आप इस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि जब आप एक रील बनाते हैं या 10 सेकंड पे फोकस करते हैं और मैं कुछ हुक बना दूँ एंड आई गेट दैट फेम, एंड व्हेन यू डोंट फोकस ऑन योर आर्ट, योर हार्ट, तो आप फुलझड़ी जला रहे हैं. आप उसको ऐसे सोचिए, फुलझड़ी जलाते हैं ना जैसे दिवाली पे, तो वो जलेगी, बहुत सारी रोशनी होगी और सट से ख़त्म हो जाएगी. लेकिन जब आप अपनी आर्ट पे फोकस करेंगे तो आप अगरबत्ती जला रहे हैं जो बहुत देर जलेगी और खुशबू छोड़ के जाएगी अपनी. तो लड़ो मत, अगरबत्ती जलाओ. No, but yeah, and I think it's also, it's a space where we all celebrate differences. It's not, of course we do look for similarities, just like when we meet people and all of that. But I think a celebration of differences is what makes everything. And this is
I mean, even today, the whole conversation, I think, yeah, amazing. So I think we have just time for a last question before we just open it up for here. I wanted to ask, has there ever been like a situation where, like, see, you're also entering a space which is always has been there, right? So there will be unsaid traditional gatekeepers, right? Saying this is not right. Why are you doing this? You know. So how do you tackle the traditional gatekeepers who just, like, you know, take the onus upon them that, you know, it's they're bestowed with this position to be asking you also. So how do you, has that ever happened? Yeah, I think like for example, I'll take example. यहाँ पे फलक बैठे हैं. So he नहीं, ये I think ये थोड़े ज़्यादा अमीर है. So Falak met me like again 7 years ago or maybe somewhere around that time, right? So when he met me for the first time, he saw me and he saw me playing the way I used to play, and he immediately had some feedbacks. So he gave it to me. There's like, Bhuvin, you can do this better. And it was coming from a place where he kind of cared about it. And he wanted it to look better, sound better, right? And then there were other people, again, who were listening to me for the first time and they were like, what the fuck? I'm sorry, I'm not sure if I can talk like that. Yeah, so please. So they're like, why are you doing this? You should not do this on stage. I'll give you an example. I used to play in bars for a very long time, in all the clubs in Hyderabad. So now, वो मेरे लिए एक पर्सनल चैलेंज होता था, क्योंकि मेरा म्यूज़िक, मैं कॉलेज टाइम में ऐसा करता था कि मैं एक कॉर्नर में बैठा हूँ, आई एम सिंगिंग, स्लोली माई फ्रेंड्स स्टार्ट जॉइनिंग, एंड हम पंजाब में इसको यही बोलते थे, आज महफिल लगाएंगे. This is a regular conversation in my hostel every day. Like even now, if I call a friend called Mohana in Punjab, he'll be like, पाजी आ जाओ महफिल लगाएंगे. That's a basic concept. तो अब मेरे को ऐसा लगता था कि हम तमीज़ से बैठ के बातें कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं. This is the purpose of us sitting. But when you go to a club and you're singing on stage, people are not there for you. People are there for food, drinks, and their own conversations, and it's all fair. You can't call that audience as ignorant कि यार ये तो ध्यान नहीं दे रहे. Now it's on you how to grab that attention. So when I went on stage, I felt uncomfortable कि यार मैं गा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है. So just to get that attention, I would randomly, in a very sad song, sing 2 lines of Nerolac. And by the time they catch hold of it, I switched back to my song. And I used to do this. A lot of people noticed it and they said, what are you doing? Why are you doing this? Because they had seen a live performance in a particular way and they wanted to stay like that. They were like, why are you doing this unnecessary bullshit? This sounds so wrong. You're disrespecting the stage. Now for me, if I really have to go that route, singing on a stage where people are not even paying attention to, that itself is disrespect to the art. But now I am trying to make sense of it in my own way. So I figured a new way to do it. A lot of people did not like it. And and luckily they were honest enough and they came right up front and they spoke to me that, why are you doing this? This doesn't look nice. So I was like, right now this is the need. So अगर मैं 5 गाने सुना सकता हूँ Nerolac की 2 लाइन गा के, I feel it's working for me. हाँ, I've done this. So like literally A minor chord पे आप Nerolac का ऐड गाओ और उसके बाद मुस्कुराने की वजह तुम हो. It blends like that and people won't even realize what happened. And it just, they're like, hey, एक second, ये खाना बाद में ये क्या हुआ? That is all you need as an artist on stage. You need that attention. Now I don't do it because I don't have to do it because I'm doing a show where it's a sit-down audience. They're coming specially for music. But to reach that level, it took me these years. So yes, a lot of people wanted to gatekeep the way a person should behave on stage. I tried to break it because it was not working for me. It was a very personal choice because I had to survive in this ecosystem. So yeah, we faced those kind of criticism, but I think now, if they see my intention, they might agree with me. Yeah, it's quite different gatekeeping. नहीं, मेरे लिए gatekeeping के मायने बहुत अलग रहे because when you come from a family where you have crazy legends, so people
like you said, the onus, you know, they already take it upon themselves to judge me as one of the greats already from a very young age. कि ये तो मतलब है ना, और मुझे इस तरह की गेट कीपिंग तब चालू हुई जब when I started doing my own thing, which is Urdu blues music, and you know, because I was doing something new with ghazal, which is a very traditional form, Urdu poetry, which is scary actually for the younger generation now. Okay, Urdu, अरे भाई कहाँ Urdu भाई, कुछ क्या Urdu? But Urdu is super fun, you know. Urdu is so fun, so romantic, so sarcastic. Oh my God, dark, you know. And that's something that I was also trying to adapt into my influences. कि भाई मैं सुनता हूँ techno, मैं जाता हूँ, you know, all to the best techno gigs around the world, and I also listen to a lot of blues music. So जब मेरे रिश्तेदारों को ये पता चला कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो मैसेज आते थे, you know, to my parents, and they'd be like, ये कितने दिन चलने वाला है भाई, क्या सीन है ये, इसको अगर शायरी करनी है तो फिर शायरी कर ली है. तो ये जो प्योरिस्ट, जो लोग प्योरिस्ट हैं, जो बिल्कुल सब कुछ चाहते हैं कि बिल्कुल प्योर तरीके से हो, वो बड़ा प्रेशर है. और आई वुड टेक इट ऑल्सो, आई वुड बी अफेक्टेड बाय इट ऑल्सो. लेकिन वो 10 साल पहले था. पिछले 10 सालों में यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि समीर, यू आर रिवाइविंग द सीन नाउ. तो मेरे हिसाब से लाइक हाउ ही डिड हिज ओन थिंग to, you know, to kind of survive, like he said, to keep his head out of water. मैंने 10 साल मैं भी इफेक्ट हुआ. तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है गेट कीप तो होना ही है. आप कुछ भी करें, आप गेट कीप होंगे, you know. और हमेशा कुछ और लोग होंगे. जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो टीवी पे जो लोग देख रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि यार हार्दिक पांड्या को पहले उतरना चाहिए था, you know, ये तो गलत हुआ है ना. लेकिन you know the kind of work that goes into being a sportsman and then finally to be playing at that level. तो वो सीन आपकी ज़िंदगी में टोटल गेट कीपिंग पूरे टाइम चलनी है. आप कुछ भी कर लें, आपको कोई ना कोई ज्ञान बांटने आएगा ही, है ना. सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है ना. ये मेरा एक गाना है, ज्ञान, है ना. सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, तो ज्ञान आपको बांटते रहेंगे. तो गेट कीपिंग मैं वैसे लेता हूँ कि आप गेट कीप कर लें, मैं गेट तोड़ दूंगा. एंड जस्ट टू स्टे रियल अबाउट इट, 5 साल बाद हम दोनों भी कर रहे होंगे. 5 साल बाद मैं तो अभी भी मैं खुद गेट कीप करता हूँ एक्चुअली. मैं गेट कीप सिर्फ एक चीज़ करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि लोग, जो भुवन ने कहा बहुत खूबसूरत बात इनिशियली जब हम बात कर रहे थे, कि तमीज़ की बात अगर हो रही है महफिल में, मतलब महफिल तफरी नहीं है, महफिल है कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर कुछ हो रहा है अच्छा, और आप लोगों को एनरिचिंग लगे जब आप उठें वहाँ से. हाँ, तो इन्होंने जो तमीज़ वाली बात करी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वो चीज़ें गेट कीप कर रहा हूँ कि अगर कोई उर्दू पोइट्री कर रहा है तो वो थोड़ा सा उसको ठीक से करे. अब अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ जो प्रोनंसिएशन है वो कुछ तो भी हो रहा है, मतलब मैं जावेद अख्तर की तरह नहीं करता, आई कीप इट वेरी कूल, बट ठीक से करो फिर उसको. मतलब वो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अरे म्यूज़िक तो रूल्स नहीं होने चाहिए, कोई रूल्स नहीं होने चाहिए, तो फिर ए माइनर कॉर्ड पे आप कोई और नोट लगा लीजिए, आप बेसुरे लगेंगे. रूल्स हमारी ज़िंदगी में हैं. रूल्स नहीं तो आप चेस नहीं खेल सकते. आप चेस खेलने की जगह तो आप बोले नहीं साहब मेरा घोड़ा तो कहीं भी जाएगा, यू नो. ऐसे ही गज़ल के कुछ रूल्स हैं. तो अगर आप कह रहे हैं एक पीस को कि ये गज़ल है, तो फिर गज़ल के रूल फॉलो करें, या फिर उसे बोलें कि ये नज़्म है, यू नो, ओपन प्रोज है या कुछ भी है. तो आप कर रहे हैं तो उसे सलीके से करें, मुझे ऐसा लगता है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लर्निंग कर्व. तो अगर मुझे पता है कोई यंग आर्टिस्ट है तो मैं ऐसे कोई जज नहीं कर रहा हूँ उसको, और मैं खुद सीख रहा हूँ अभी इतना. बट हाँ, लेकिन अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं और वो टैग ले रहे हैं और वो लेबल ले रहे हैं कि मैं एक उर्दू पोइट हूँ, फिर आप सा को फा बोलते हैं और फा को सा बोलते हैं और फा को फिर आप फा बोल रहे हैं, तो फिर तो बस ये मेरी गेट कीपिंग है और यही चलेगी. मुझे लगता है ओनली बिकॉज आई वांट पीपल टू, ये तो चलनी भी चाहिए, ये तो ज़रूरी है. क्योंकि कई बार लाइक, सो आई एम सेल्फ अवेयर, सूफी हो जाएगा मामला सब. if you are coming there. so I think like अब अगर मैं, क्योंकि अब मेरे को पता है कि मैं शायर नहीं हूँ, मैं जो भी लिखता हूँ अगर उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासीफाई कर सकता हूँ तो इस कैटेगरी में कर सकता हूँ कि मैं तुकबंदी कर पाता हूँ, कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन का मतलब ऐसे बनेगा और ये सुनने में भी ठीक लग रहा है. सो मैं शायर नहीं हूँ, मैं शायरी नहीं कर पाता, मैं तुकबंदी कर पा रहा हूँ. अगर मैं इस लिमिट में रहूँगा तो जो भी मैं करूँगा ये मुझसे गेट कीप नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है भूमिन जो तू कर रहा है वो तुकबंदी है. अगर मैं बोलूँ कि समीर भाई मैं तो शायर हूँ और आप आओ मेरी शायरी सुनो, हाँ ये गज़ल सुनो, हाँ, तो अब
फिर समीर भाई भी बोलेंगे कि भुवन कर लो जो करना है, नहीं मुझे पर्सनली और इसका माइक छीन लो. हाँ नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव सो मेनी पीपल अराउंड अस राइट, हम जो हमारे टीचर्स हैं और हमें लगता है हमें एक्सेस नहीं है, पर हमारे जो पेरेंट्स भी हैं या हमारे जो कजन्स हैं जो हमसे बड़े उम्र में, उनने भी काफ़ी लिटरेचर हमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है यू नो, और हमारे आसपास इतने गुरु हैं हमारे, हमें तकलीफ क्या है यार, उनसे पूछ लो ना आप जो भी मतलब वी आर शेयरिंग एनीथिंग दैट वी आर राइटिंग टुगेदर ऑल द टाइम, नॉट बिकॉज वी वांट अ करेक्शन इट, लेकिन अगर करेक्शन की गुंजाइश है तो बहुत स्पोर्टी तरीके से हम उसको ले रहे हैं. कोई ऐसा नहीं हो रहा कि मैं भुवन को अगर उसने मुझे कहा अरे भाई तूने ये क्या कर, मैं उसे बहुत खूब मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसा होगा तो बेहतर लगेगा, बट इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ जिसका प्रूफ है, लिविंग प्रूफ. ठीक है, मैंने अपनी जब पूरी एल्बम लिखी थी उसमें एक गाना था बाजार, उसके पहले देर इज़ एन इंट्रोडक्शन विच इज़ कॉल्ड सिलसिला. अब मैं अगेन उसको मैं शायरी नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ प्रोलॉग टू दैट सॉन्ग बिकॉज इट लीड्स टू दैट स्टोरी. अब उसमें आखिरी एक लाइन थी, और मैं पंजाब से हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट उर्दू एंड वर्ड्स, मतलब वैसे मैं राजस्थान से हूँ बट मैं पंजाब से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो मेरी पोइट्री या जो भी आप मेरी वोकेबलरी बोलो वो बहुत डिस्टॉर्टेड है. तो मेरी एल्बम में आज भी वो रिकॉर्डेड है और वो गलत रिकॉर्डेड है. इट्स रिलीज्ड एंड समीर वाज द वन हु एक्चुअली सेड कि भुवन ये गलत है. ठीक है, तो मेरी उसमें आखिरी लाइन ये है कि तुम्हारे जाने का शौक़ समझ आया कुछ देर से कि जब मैंने कलम उठाई, और अब सच मानो मेरे जहन से कतई बाहर हो. अब इसमें मैंने जो रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है वो कलम उठाया है. दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड, दिस इज़ हाउ बैड आई वॉज विद माई वर्ड्स अर्लियर. कलम उठाया क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कलम उठाई होती है. जब मैंने ये लिखा मैं तब सिर्फ अपने इमोशंस को लिख रहा था. तो द मोमेंट ही हर्ड ही सेड भुवन कलम उठाई होता है. मैंने कहा भाई अब तो रिलीज़ हो चुका है, तो इसलिए कोई बात नहीं. सो अब मैं अपनी परफॉर्मेंस में तो उसको चेंज कर सकता हूँ ना. तो अब मेरे लाइव शोज़ में मैं जब वो गाता हूँ मैं उसे कलम उठाई ही बोलता हूँ, बट फॉर अ लिविंग प्रूफ वो आज भी मेरे एल्बम के अंदर जो रिलीज है उसमें कलम उठाया है. अब उसको मैं कभी भी धो नहीं पाऊंगा तो वो दाग तो मेरे साथ रहेगा. नहीं वो कलम बहुत बड़ी होगी बहुत, तो हो सकता है तूने कलम उठा लिया है. या मैंने बंगाल में लिखी थी. मैंने बंगाल में लिखी थी वो. बात वही है कि लाइक ही मेंशन्ड सूफी, तो अब उस नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसका जो हमने अभी कल परसों ही डिस्कस किया था कि आप जो कर रहे हो उसको सही लेबल कर दो, आई एम ओके विद इट. आप उसको गलत लेबल कर रहे हो तो फिर मैं वो अंकल बन जाऊंगा कि अरे ये गलत कर रहे हो. हाँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो देखा जिसमें पीछे कवाल बैठे हुए हैं सब और वो तबला हारमोनियम सब बज रहा है, एंड फ्रंट में देयर वर टू सिंगर्स who were kind of getting the crowd like to the right energy, and it was all a great performance. And उन्होंने म्यूज़िक बजाना शुरू किया तबले पे और हारमोनियम पे, जो अभी ये धुरंधर वाला था ना, फ्लिप रांची वाला, जो भी बीट है, ठीक है. एंड इट स्टार्टेड एंड इट साउंडेड ग्रेट बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट दिस एंटायर कल्चर, बिकॉज जो तबला और जो हारमोनियम प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं था, आज उन सबके घर इस कल्चर के कारण चल रहे हैं. आप दिल्ली जाके देखो, there are at least 60 bands who are doing these Qawwali nights every now and then, and they're getting paid every weekend. So that has boosted their entire livelihood. But on the other side, this music starts, which is a movie ka track, which is only an instrumental track, there's no vocals, and then suddenly they merge it into Le Le Maza Le from Salman's movie, which is again sounding great. And they started singing it and crowd was happy. The only problem was the caption said Sufiana Mehfil. हाँ, so that is my only problem. वो कैप्शन सही रखो ताकि, क्योंकि आज से 20 साल बाद कोई वो वीडियो देखेगा और वो बोलेगा इसे बोलते हैं सूफियाना, तो मुझे वो प्रॉब्लम है कि कल को मेरे बच्चे ये ना सीख जाएं, क्योंकि ये हम अब अपने आर्काइव्स में ये छोड़ के जा रहे हैं. तो बस मेरी ये प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है. आर्काइविंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हम बड़ी दिक्कत होती है हमें. हाँ, कल को मैं अगर सितार बजा रहा हूँ और उसका नाम लिख के चला जाऊँ ब्लूज़, हाँ, और 500 साल बाद कोई देखे कि अच्छा इसको सितार बोलते हैं, ये है क्या मामला. तो वो प्रॉब्लम है. Short on time, we'll just open it up for Q&As. But just to sum this up, just want to say like today was like a perfect mehfil in the sense like it's not about scale, it's or purity, but mainly about presence. And you know, yeah, preserving a form intact, we do get it, but it's also preserving the form or way of listening. It's the whole listening culture. So whether we come from an artist point of view or any way you are part of the circle, like I come in from a curator space.
So from Tangy Sessions, and this is the 10th year of Tangy Sessions, and the whole idea was to only build a space of listening, a listening community, and yeah, I mean, thank you so much, guys, and we'll just see if anybody is interested to ask any questions or Sorry for inconvenience. We're just gonna take only 2 questions. we'll keep the answer short. We'll also just take 2 questions. हाय गाइस माय नेम इज़ एक्टर राठौड़ 2 लाइन के शुरू करूँगा कि फंक जब फड़फड़ाए उन्हें काट कर चलना सीख गए हम अगर उड़ने की थोड़ी सी कोशिश कर देते तो न जाने किन ऊंचाइयों को छू पाते हम ये आप लोगों को देख के मुझे लगा कि व्हेन यू सेड 7 इयर्स 8 इयर्स से आप लोग ये कर रहे हो 20 साल नहीं नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट कि वी नो ईच अदर फ्रॉम 7 इयर्स अच्छा हाँ तो आई हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स जो आई वॉज नेवर सक्सेस में किसी में हो नहीं पाया तो फिर आफ्टर लिसनिंग टू यू मेरे को ये समझ में आया कि दैट कंसिस्टेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि परसेवरेंस जो है वो तो एक क्वेश्चन था मेरा कि बट वो सुनते वक्त सॉरी यार दिमाग में वो बहुत अच्छा लगा मेरे को बट बोलते वक्त इट्स साउंडिंग माइक पे ऐसा ही लगता है बोलो आप कि मेरा क्वेश्चन ये था कि एआई का जो ये है ना कि एआई इज़ टेकिंग ओवर एआई ब्ला 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 म्यूज़िक सब कुछ एआई बना रहे बट जब आपने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है या माइक्रोफोन जो है पीछे जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट उसके बिना ये टेक्नोलॉजी तो कुछ भी नहीं है तो सॉरी कोई बात नहीं आपका सवाल ये मैं बताता हूँ क्या है आपका सवाल आपका सवाल है कि एआई से कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं ये नहीं है अरे सॉरी नहीं आंसर ये है कि लाइक व्हेन यू ऑलरेडी लाइक आप कोई जवाब दे दो ना सवाल की जगह कुछ और बता दो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं आप सोचो थैंक है यू ना थैंक यू मैन But success is also just about doing what you want to do. You know, there is like I think at every point you will feel like you are not successful, you will feel you are successful. But it's just to wake up and to be able to do what you want to do. Yeah, the next. हाय भुविन मेरा नाम चक्षु है आई गेस सभी ये चाहते होंगे सांसों की माला की 2 लाइन नहीं यार देखो यहाँ पे हम बात करने आए ना तो लेट्स स्टिक टू दैट एजेंडा बिकॉज ये अगेन मैंने आर्काइव में डाल के छोड़ दिया आप कितनी बार भी सुन सकते हो उसको ये जो मैं बात कर रहा हूँ शायद ये कहीं नहीं मिलेगी आपको तो आई वुड रादर स्टिक टू दैट ये सवाल आ रहा है Just one small, sorry. So, hello everyone, hello Bhuvin, a big fan. Just एक चीज़ पूछनी थी कि again as he told सांसों की माला. आई थिंक वो क्वेश्चन ही था आई एम सॉरी टू इंटरप्ट शायद चक्सू राइट सांसों की माला की लाइन पूछ रहे हैं वो उन्हें पता नहीं है सवाल है वो आप बताएं उन्हें नहीं Please. अच्छा नहीं देखो मैं इतना बताऊंगा कि पिछले 2 महीने में ना मैं अपनी जान वो होता है ना दाव पे लगा चुका हूँ जहाँ पे मैंने सांसों की माला सिर्फ गाने से मना किया था एंड मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि लोग पीछे पड़ गए थे कि हाउ डेयर यू से नो टू इट तो मैं ये नहीं चाहता कि ये आप लड़का ऐसा नहीं लग रहा मुझे हाँ, नहीं तुम तो बहुत सभ्य तरीके से पूछ रहे हो हाँ मुझे ऐसे पूछा गया था कि सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा वैसा तो मेरे लिए अब वो ट्रॉमा बन चुका है जहाँ मेरे को कोई बोलता है ना कि आप सांसों की माला गाओगे या नहीं मैं भाग लेता हूँ वहाँ से रुको तुम अभी हाँ मेरा क्वेश्चन ऐसे ही कुछ था कि इंस्टाग्राम पे लाइव देखते हैं हम या परफॉर्मेंसेस में देखते हैं वी हैव अटेंड योर परफॉर्मेंस मेनी टाइम्स एंड यू कम विद अ लाइक स्टार्टिंग में आपने बोला कि स्टार्टिंग 5 मिनट्स में आप टोन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड तो सडनली जब स्टार्टिंग में सांसों की माला शुरू करते हैं लोग दे स्टार्ट शाउटिंग इन लाइव्स दे पी लाइक सांसों की माला भुवन सांसों की माला हाउ डू यू टेक दैट एंड हाउ डू यू हैंडल देम अकॉर्डिंगली देखो मैं पहली बात तो इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता क्योंकि अगर आपने मुझे डिस्कवर एक गाने से किया है सो आई एम ग्रेटफुल दैट समहाउ यू डिस्कवर्ड मी एंड आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट वन पीस ऑफ आर्ट दैट हैज़ गॉटन मी सो मच ऑफ अटेंशन एंड सो मेनी पीपल who kind of discovered me. But on the other side, मुझे कहीं ना कहीं अपने मन को भी शांत करना है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे अंदर 10 चीज़ें होंगी उनमें से अगर आप एक पकड़ के रखोगे तो फिर इट्स कटिंग डाउन द स्कोप ऑफ माई फ्रीडम तो आई हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिकॉज आई कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल बिकॉज येस इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ अटेंशन अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी आई विल नॉट डिनाई इट
and I love that piece. It's and whenever I sing Sanson Ki Mala, actually I quote this on stage every time that I don't sing Sanson Ki Mala. Sanson Ki Mala इबादत का एक तरीका है, उसे पढ़ा जाता है. तो अब मैं जब मैं उस जोन में होऊंगा मैं पढ़ूंगा, जब मैं उस जोन में नहीं हूँ मैं सिर्फ उसको आई कैन जस्ट नेविगेट थ्रू दैट कॉन्वर्सेशन कि यार अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता. तो आई हैव टू लाइक समहाउ फिगर आउट, क्योंकि मैं गलत भी नहीं बनना चाहता मना करके, पर मैं बिना इंटेंशन के उसे पढ़ना भी नहीं चाहता. Because also it's all about moving on, and it's not like really how does someone discover you. Like for example, like it's like the Nerolac thing, you know. And like for example, for the last 10 years we've been doing shows, but people only recognize us now because we've been organizing shows at the Stepwell, right? And it's become viral, and people only think we only do it, have shows, these tangy session shows at Stepwells, and it's only now. But that's something that you just leave and you just move to the next show. आई थिंक मेरा कुछ वायरल हो गया तो इट विल बी अ कर्स, तो मैं तो चाहता हूँ ना हो. नहीं आप ही हो क्योंकि viral. ये मैं हाँ, मुझे वायरल हो जाए लेकिन मेरा कंटेंट वायरल ना हो. नहीं it's pretty viral. या देन इट बिकम्स योर आइडेंटिटी. आप कोल्ड प्ले करने आ रहे हैं, आप उससे बस येलो ही सुने जाओगे क्योंकि आपकी गलती है ना, वो आपने सिर्फ येलो सुना है, तो आप और सुने. तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अ कर्स ऑल्सो, बट हाँ लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट ये हुआ, क्योंकि हम वी आर रनिंग रियली लेट नाउ. कि जितने लोगों ने ये महफिल में बातें सुनी हमारी, कि इतना कॉन्ट्रास्ट है हम दोनों के बीच में. हम बहुत खूबसूरत दोस्त भी हैं बहुत टाइम से. ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, एंड आई लव इट बिकॉज जैसे भुविन कह रहे हैं कि मैं वो बैलेंस भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो इबादत की तरह है. इट्स ए स्पिरिचुअल थिंग, इट्स डिविनिटी फॉर मी. मैं मना कर देता हूँ मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं उस तरीके से यू नो, सो इट्स ब्यूटिफुल. लाइक आई एम एबल, आई जस्ट से नो, यू नो, सो इट्स अमेजिंग. एंड लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिस्कवर्ड हिज म्यूज़िक, मैंने सबसे पहले क्या लेना सुना था उर्दू ब्लूज़ में, एंड फिर खत सुना, और मुझे लगा कि बस मुझे यही सुनना है इनसे. पर जब मैं इनसे मिला, मैंने जुगनू सुना, मैंने इतने गाने सुने, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी नज़र आती है उसके आर्ट में, उसे एक दायरे में बंद करना सही नहीं है. तो एज अ लिसनर आई ऑल्सो अडेप्टेड टू इट. मेरे को भी यही था, मैं पहली बार मिला मैंने कहा खत सुनना है, तो कितनी बार खत सुन लूँगा, और वो कितनी बार सुना देंगे. ठीक है, अच्छे दोस्त भी हैं तो लिहाज रख लेंगे थोड़ी बार, 3 बार के बाद बोलेंगे भुविन चल भाग. तो भुविन को भी इवॉल्व होना पड़ेगा एज एन ऑडियंस फॉर समीर टू बी कंज्यूम्ड प्रॉपरली. But thank you guys, and thank you Bhuvin, thank you Samir, and for doing this. And this is probably the first time all of us are sitting and talking in front of other people, right? So this has moved from a balcony to a mehfil, and thank you HLF for you know letting this conversation. This is also a part of you know putting it to the next generation, and like people getting to know, and like also a way to meet a lot of people. So thank you so much for the team of NRB, Hyderabad Lit Fest, and all you guys coming in. And please do, I hope you're here till the end of the day, because we have Samir Rahat performing tonight at the main stage, closing the festival at 5:45, if there's no rain. 5:45? 45? Yeah. 5:30 guys. I hope to see you guys again. Thank you. You've been a wonderful audience, and we are still open for questions at 5:30. Thank you so Thank you. much. Please, one second. Thank you so much, everybody. Can we get a huge round of applause for Samir, Bhuvin, and Arjuna? Keep your cheers coming, cause I would like to call upon stage Shreya Gupta, founder of the NRB, curator of Youngistan Nukkad, screenwriter, poet, and a performer, and whatnot, to present this beautiful gift from the very straight NRB store. Keep your cheers coming, guys. Show some love and support. Thank you so much.